welcome back to the sixth lecture of S block elements, where we are going to study about the chemical properties of these elements. Okay, so before actually starting, let me tell you one thing, that the reactivity, okay, the reactivity of S block elements is higher, or you can say is more than P or D block elements. ठीक है, P और D block के elements से ज़्यादा S block elements reactive होते हैं. ठीक है, तो we will see the reactivity first. ठीक है, तो जब हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, ग्रेटर होती है किससे, पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. मोर ओवर व्हेन यू गो अलोंग द पीरियड, ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग अलोंग द पीरियड मींस व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम ग्रुप, as you all know that S block elements are divided into two groups. Which are those two groups? First group and the second group, correct? So when you are going along the period, you are going from the first group to the second group, isn't it? So what will happen over there? Size will increase or size will decrease? Size is obviously going to decrease over there. Okay, so as size is decreasing, ionization enthalpy is increasing, correct? So group 1 elements are more reactive than group 2 elements because of more size and low ionization potential. So when we are going along the period, okay, so I can say here that group 1 elements are more reactive than group 2 elements, isn't it? Why? Reason you can give over here. Reason, large size of group 1 elements, whereas low ionization potential, और you can say low ionization enthalpy also. Okay, तो ये तो बात हो गई when we are going along the period. Now when we are going down the group, means from top to bottom when we are going, so we have the elements, right? How are the elements? We are having sodium, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and फ्रांसियम को तो हम नहीं लेंगे ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, calcium, strontium and barium. Okay, so when I am going down the group, okay, when I'll be going down the group, what will happen over here? As I'm going down the group, the reactivity will increase. Why? Because ionization enthalpy is going on decreasing, correct? As you all know, atomic size is inversely proportional to ionic potential, isn't it? So when I will be going down the group, what will happen here? Ionic potential or ionization enthalpy is going to decrease. As the ionization enthalpy is going to decrease, the reactivity is going to increase. Okay, so keep in mind that let it be group 1 or let it be group 2, the reactivity will increase when you will go down the group. Okay, and what will be the reason over here? The reason will be ionization enthalpy is decreasing. Okay, got this point? That reactivity will go on increasing as you go down the group. Okay, so now these things were related to reactivity. Now what will happen if I expose these S blocks element to the air? When I am exposing these S block elements to the air, what will happen over here is, okay, I'll write over here, exposed to air. So when I am exposing these S block elements to air, what will happen? Lithium, group 1 element, lithium, and here group 2 element, first element is beryllium. So lithium will be stable, beryllium will be stable. Okay, now when I am going down the group, who will come over here? Sodium and potassium. Okay, when sodium and potassium are exposed to air, what will happen? They will tarnish. They tarnish. Okay, here also magnesium and calcium when exposed to air tarnish. Now means sodium tarnishes, magnesium tarnishes. What do you mean by that?
a oxide layer is formed around them, ठीक है, when they are exposed to air an oxide layer is formed, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ oxide layer is formed. Here also oxide layer is formed. Okay, now moving down, strontium and cesium. Here magnesium, calcium, sorry, potassium, rubidium and cesium, and here strontium and barium. It happens now when those same elements are coming in your mind again and again, it happens. So here rubidium and cesium, here strontium and barium. So when I am talking about rubidium and cesium, what happens when I expose them to air, they burn. And strontium and barium also, when I expose to air, they burn. ठीक है? So what is happening? Rubidium and cesium are burning whenever they are exposed to air, whereas in group 2 elements strontium and barium are burning whenever they are exposed to air. So this is the reason why these alkali metals, okay, why these alkali metals are kept in kerosene. ठीक है, this is the reason why they are kept in kerosene. Moreover, they are also kept in paraffin oil. Paraffin oil. Now what is paraffin oil? Paraffin oil is unsaturated hydrocarbon. ठीक है, उसको बोला जाता है. Lithium is a exception over here, okay, and that is the reason I am drawing a star over here. Why? Because at a particular time, till a particular time, lithium is stable, whereas after some particular time, lithium is also kept in paraffin wax. ठीक है, why it is kept in paraffin wax? Because of low density. Okay, so this is the reason why these elements are kept in kerosene or paraffin oil, and lithium is kept in paraffin wax. One more question is asked over here that why S block elements show metallic luster. ठीक है, तो metallic luster इसलिए show करते हैं S block elements because इलेक्ट्रॉन जो होता है वो higher energy level में जाता है और ionization enthalpy जो होती है वहां पर वो low होती है. This is the reason why they show metallic luster. Now next let us start with the reactions of S block elements. ठीक है, तो पहला रिएक्शन जो हम लोग देखने वाले हैं वो है रिएक्शन विथ मॉइस्ट एयर. कैसी एयर? मॉइस्ट एयर. ठीक है, मॉइस्ट एयर है मीन्स यहाँ पे H2O है और एयर है मीन्स यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है. एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है ना. ठीक है, तो मॉइस्ट एयर है मीन्स यहाँ पर हम लोग वाटर का भी यूज करेंगे, ऑक्सीजन का भी यूज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज करेंगे. ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं दैट एस ब्लॉक एलिमेंट्स गिव कार्बोनेट व्हेन रिएक्टेड विथ किसके साथ रिएक्शन लगा रहे हैं हम लोग? मॉइस्ट एयर के साथ. ठीक है, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है यहाँ पर और वो है बेरिलियम का. बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता है बिकॉज ऑफ हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी. इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो ज्यादा होता है. ठीक है, हाई. दिस इज द रीजन व्हाई बेरिलियम इज नॉट रिएक्टिंग विथ मॉइस्ट एयर. ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स जो होते हैं इस ब्लॉक के एक्सेप्ट बेरिलियम दे रिएक्ट विथ मॉइस्ट एयर. ठीक है, तो अब एक जनरल रिएक्शन देखते हैं, देन विल टेक वन एग्जांपल. ओके, तो पहले जनरल रिएक्शन देखते हैं एएम का. कौन होते हैं एएम? अल्कली मेटल्स की बात कर रही हूं मैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स की. ठीक है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स का एक जनरल रिएक्शन देखते हैं. मेटल है, मेटल को मैंने रिएक्ट किया है ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, मेटल को मैंने रिएक्ट किया है ऑक्सीजन के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मेटल ऑक्साइड है ना, यहाँ पर -2, यहाँ पे +1 चार्ज रहेगा. देन व्हाट इज हैपनिंग? देन आई एम एडिंग वाटर ओवर हियर.
इस मेटल ऑक्साइड में, यहां लिख दूं क्या मैं मेटल ऑक्साइड, now I'm adding some water over here in this metal oxide. I'm adding some water over here. So what will I get? I will get a metal hydroxide. ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा मुझे। Then I will add some carbon dioxide to it. Now what will happen? I will get a carbonate. ठीक है, मेटल कार्बोनेट। ठीक है, तो ये तो जनरल रिएक्शन थी। क्या होगा, कोई भी एक मेटल ले लो आप, अल्कली मेटल, ठीक है, ग्रुप 1 का, आपने मेटल ले लिया, मेटल में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। जैसे ही आप मेटल में ऑक्सीजन को ऐड करोगे, यू विल गेट अ मेटल ऑक्साइड। व्हेन यू विल ऐड वाटर टू इट, यू विल गेट मेटल हाइड्रोक्साइड। व्हेन यू विल ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू इट, यू विल गेट मेटल कार्बोनेट। सो मीन्स यू आर गेटिंग अ मेटल कार्बोनेट व्हेनेवर यू आर रिएक्टिंग अ मेटल विथ मॉइस्ट एयर। ओके, सो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे सोडियम का। ठीक है, विल टेक सोडियम प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव अस, यहाँ पर क्या होगा, प्लस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे -2। ठीक है, नाउ सोडियम प्लस ऑक्सीजन में कर रही हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सोडियम ऑक्साइड मिलेगा, Na2O। ठीक है, देन आई विल एड सम वाटर ओवर हियर, आई विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ट्वाइस। देन आई विल एड सम CO2 टू इट। ठीक है, कुछ CO2 मैंने इसमें मिक्सअप कर दिया तो मुझे मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, तो ये बात तो हुई ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 एलिमेंट्स कौन से होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, AEM ग्रुप 2। ठीक है, एक जनरल रिएक्शन लेते हैं इनका भी। मेटल ले लिया मैंने, यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, क्या मिलेगा मुझे, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। अभी डिफरेंस है यहाँ पे देखो, यहाँ पे +2 -2 +1 -2। ठीक है, चार्ज देखते जाओ। ठीक है, देन आई विल एड सम वाटर ओवर हियर, H2O को ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, जैसे ही मैंने H2O इसमें डाल दिया, इस मेटल ऑक्साइड में, आई विल गेट मेटल हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा मुझे, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे इस मेटल पे +2 चार्ज है, यहाँ पे OH पे -1 चार्ज होता है ना, तो इसको मैं होल ट्वाइस कर दूंगी। ठीक है, देन आई विल एड सम CO2 टू इट। मेटल हाइड्रोक्साइड में मैंने CO2 को डाल दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेटल कार्बोनेट CO3। यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पर -2। ठीक है, सेम वही करते हैं जैसे ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स करते हैं, वैसे ही ग्रुप 2 एलिमेंट्स भी करते हैं। एग्जाम्पल बेरिलियम तो नहीं ले सकते क्योंकि एक्सेप्शन इन्होंने ऑलरेडी हमको शो कर दिया है, तो यहाँ पे हम मैग्नीशियम को ले लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैंने वाटर को ऐड कर दिया, विल गिव मी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देन आई विल ऐड सम CO2 ओवर हियर, सो आई विल बी गेटिंग मैग्नीशियम कार्बोनेट। Understood? So this is how the reactions are going to work when we will be adding S block element with treating S block elements with moist air. Now next we are going to see the reaction with air. ठीक है, तो हमने moist air को हटाकर सिर्फ air को ले लिया। ठीक है, reaction with air। अब air की मैंने बात की है, moist air नहीं है यहाँ पर, सिर्फ air है, मीन्स यहाँ से water हट गया, H2O की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी यहाँ पे। मोर ओवर एयर है सिर्फ यहाँ पर, तो CO2 भी हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब बात करेंगे तो हम सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पे हीट भी रहेगी। ओके, हीट विल ऑल्सो बी देयर। सो नाउ लेट अस सी, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं, ये भी आपको पता है। और ग्रुप 1 एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स बोलते हैं ना, AM, whereas ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिनको हम बोलते हैं शॉर्टकट में AEM। ठीक है, तो बात करते हैं पहले AM की, अल्कली मेटल्स की। तो पहले जनरल रिएक्शन अगर मैं आपको बताऊं इनका होता क्या है एक्चुअली। सो whenever S block elements are reacting with air, whenever S block elements are reacting with air, lithium, beryllium and magnesium give nitrides, whereas all the rest elements form oxides। ठीक है, तो एक जनरल रिएक्शन लेते हैं हम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने मेटल ले लिया, मेटल को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया, क्या मिल जाएगा मुझे, मेटल ऑक्साइड।
ठीक है। वैसे ही अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो मैंने मेटल ले लिया, मेटल को मैंने रिएक्ट कर दिया नाइट्रोजन के साथ, क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा मुझे, मेटल नाइट्राइड, ठीक है, मेटल नाइट्राइड मिल जाएगा मुझे। नाउ व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट दीज रिएक्शंस, ऑलवेज रिमेंबर कि अल्कली मेटल्स में सिर्फ और सिर्फ लिथियम ही है जो नाइट्राइड बनाता है, ठीक है। लिथियम के अलावा जो बाकी सारे एलिमेंट्स है जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम, फ्रांसियम की तो हम बात ही नहीं कर रहे, तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम जो है वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, whereas only and only lithium, when I am talking about alkali metals, only lithium is making nitride, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर सोडियम को, पोटेशियम को, रुबिडियम को या सीसियम को ले लोगे तो वो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स, ठीक है। कैसे बनाते हैं ये आपको पता है, जैसे Na2O, K2O, ठीक है, एंड सो ऑन, लाइक दिस ऑक्साइड्स दे विल फॉर्म। नाउ व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट नाइट्राइड, तो यहाँ पर मैंने लिथियम नहीं लिखा, वाई, बिकॉज लिथियम भी ऑक्साइड बनाता है। लिथियम को अगर जैसे मैंने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर दिया तो क्या मिलेगा मुझे, लिथियम ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। बट बताना आपको ये है कि लिथियम को जब मैं नाइट्राइड के साथ ट्रीट करती हूँ, नाइट्रोजन के साथ ट्रीट करती हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है, नाइट्राइड, ठीक है, मुझे नाइट्राइड मिलता है। मीन्स व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ओनली लिथियम इज रिएक्टिंग विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड, whereas रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स, ठीक है। तो ये एक चीज याद रखनी है आपको ग्रुप 1 एलिमेंट्स। नाउ व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर रहे हैं हम लोग ग्रुप 2 एलिमेंट्स की। तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स में भी एक्सेप्शन है, जैसे ग्रुप 1 में लिथियम है, ग्रुप 2 में एक्सेप्शन होता है बेरिलियम और मैग्नीशियम, ठीक है। कौन कौन एक्सेप्शन होते हैं ग्रुप 2 के, बेरिलियम और मैग्नीशियम। यहां पर अगर आप देखोगे तो मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड कौन कौन देता है यहाँ पे, कैल्शियम, मैग्नीशियम तो वहां चल गया, बेरिलियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है। ये आपको ऑक्साइड देंगे, जैसे 2CaO, जैसे 2SrO, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, जैसे 2 बेरियम ऑक्साइड, ठीक है। इस तरह से ये लोग ऑक्साइड्स देंगे। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो ये भी ऑक्साइड्स देते हैं, बट दे रिएक्ट विथ नाइट्रोजन ऑल्सो टू फॉर्म नाइट्राइड्स, ठीक है। यहां पर वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, नाइट्राइड मिल जाएगा। बैलेंस कर दो इसको, ठीक है, कुछ इस तरह से नाइट्राइड्स मिल जाएगा। तो बोलना सिर्फ आपको ये है, बताना ये है कि whenever I am reacting S block elements with air, ठीक है, मॉइस्ट एयर नहीं है, सिर्फ एयर है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर ऑल द एलिमेंट्स आर मेकिंग ऑक्साइड्स। whenever I am reacting S block elements, all the elements are making oxide, but what is that but? That but is lithium, beryllium and magnesium are reacting with nitrogen to form nitrides, ठीक है। ये यहाँ पर स्टार डालकर लिख लो आप लोग, ठीक है। जिसने भी लिखा नहीं है अभी तक वीडियो को पॉज करो और छापो। ना मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शन लगा दी, एयर के साथ रिएक्शन लगा दी। अब हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की रिएक्शन लगाते हैं सूखी हुई एयर के साथ, ड्राई एयर के साथ। रिएक्शन विथ dry air. Now when I'm talking about dry air, we'll be saying some peroxide and superoxide over here. Superoxide का डिस्कशन होने वाला है इस रिएक्शन में। तो जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं अल्कली मेटल्स, यहाँ पर हम स्टार्ट होते हैं लिथियम के साथ। तो लिथियम में अगर मैंने ऑक्सीजन को यहाँ पर ऐड कर दिया तो ये बनाते हैं मोनो ऑक्साइड, दे फॉर्म मोनो ऑक्साइड, ठीक है। ये लिथियम मोनो ऑक्साइड हो गया, ओके, लिथियम मोनोऑक्साइड। तो क्या सिर्फ यहाँ पे लिथियम मोनोऑक्साइड ही बनता है? नो, लिथियम मोनोऑक्साइड इज प्रेजेंट इन मेजर
क्वांटिटी, वेयर एज यहाँ पर सम क्वांटिटी में, या आप बोल दो माइनर प्रोडक्ट जो होता है यहाँ पर वो होता है लिथियम परऑक्साइड, Li2O2। ये क्या हो गया? लिथियम परऑक्साइड। ये क्या हो गया? माइनर। और आप बोल सकते हो कि सम क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होते हैं। वाई लिथियम मोनोऑक्साइड इज मेड ओवर हियर, यहाँ पर क्यों बनता है लिथियम मोनोऑक्साइड? बिकॉज लिथियम का जो साइज होता है वो कैसा होता है? लिथियम का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, प्लस इसके पास में क्या होता है? हाई चार्ज डेंसिटी। Okay, so always remember, whenever I'll be treating lithium or you will be treating lithium with oxygen, dry oxygen, okay, whenever you will be treating lithium with dry oxygen, what will happen? It will form lithium monoxide in major product, whereas in some quantity lithium peroxide will be present over there. Now if I talk about sodium, ये तो बात हो गई लिथियम की। If I talk about sodium, ठीक है, सोडियम को मैंने रिएक्ट किया है वाटर के साथ, सॉरी ऑक्सीजन ऐड किया है मैंने सोडियम में, तो मुझे क्या मिलेगा? सोडियम ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, देन अगेन आई एम एडिंग यहाँ पर, तो अब मुझे क्या मिल जाएगा? सोडियम परऑक्साइड मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सोडियम परऑक्साइड जो होता है ये मेजर होता है, वेराज यहाँ पर सुपर ऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, सोडियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है, सुपर ऑक्साइड। ओके, सो सोडियम परऑक्साइड इज मेजर, वेराज सोडियम सुपर ऑक्साइड इज माइनर। ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, सोडियम क्या बनाता है? परऑक्साइड बनाएगा, लिथियम मोनोऑक्साइड बनाएगा। अब इसके नीचे के जो एलिमेंट्स है, लिथियम सोडियम के बाद कौन आता है? पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम की बात हम करेंगे। तो पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम तीनों सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे सुपर ऑक्साइड्स? पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीसियम, दे विल मेक सुपर ऑक्साइड। कैसे बनाएंगे? पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, इट विल मेक लाइक दिस। ठीक है, सुपर ऑक्साइड बनाएगा, इस तरह से रिएक्ट होगा। ओके, सो इफ आई हैव टू से, मीन्स बोलना आपको ये है कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीसियम। ठीक है, यहां पर क्या होता है? लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, वेराज पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीसियम सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। ओके, नाउ दीज सुपर ऑक्साइड्स ये कहां पे यूज होते हैं? वाई, वेयर आर दे यूज्ड एक्चुअली? दीज सुपर ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट्स, वेराज इन सबमराइन्स में भी यूज होता है। स्पेस में जब आप जाते हो वहां पे ऑक्सीजन तो होता नहीं है, फिर कैसे लोगे आप ऑक्सीजन को? तो दिस इज द रीजन वाई दीज सुपर ऑक्साइड्स आर यूज्ड ओवर देयर। आई विल मेक अ पॉइंट हियर, सुपर ऑक्साइड्स कहां पे यूज करोगे आप उनको? एयरक्राफ्ट्स एंड सबमराइन्स। ठीक है, एयरक्राफ्ट्स और सबमराइन्स में यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है? जैसे आपने ये ले लो, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड को ले लो। ठीक है, इसको आपने CO2 के साथ रिएक्ट कर दिया, मीन्स वहां पर तो ऑक्सीजन नहीं होता है, CO2 के साथ रिएक्ट कर दिया, तो ये क्या बना देगा? पोटेशियम कार्बोनेट प्लस ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन होता है वो लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है कौन? सुपर ऑक्साइड। अंडरस्टूड what is happening when we are reacting S block elements with dry air? Whenever we are reacting S block elements with dry air in the group 1 elements, means alkali अल्कली मेटल्स जो होते हैं, ग्रुप 1 मेटल्स जो होते हैं, तो वहां पर लिथियम मोनोऑक्साइड देता है, सोडियम परऑक्साइड देता है, वेराज पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीसियम दे गिव सुपर ऑक्साइड। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ठीक है, ग्रुप 2 की एलिमेंट्स की बात करोगे अगर आप,
तो दे ऑल फॉर्म मोनोऑक्साइड। ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स मोनोऑक्साइड बनाते हैं। कैसे बनाता है देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग बात करें ग्रुप 2 की, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। ठीक है, कौन कौन होते हैं वहां पर? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो यहां पर आप ऑक्सीजन को ऐड कर दो। कौन सा ऑक्सीजन है यहाँ पे? ड्राई ऑक्सीजन। ड्राई ऑक्सीजन को आपने ऐड कर दिया। व्हाट दे विल फॉर्म? दे विल फॉर्म मोनोऑक्साइड, CaO, SrO। ठीक है, सो ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, all alkaline earth metals form only and only monoxide। सिर्फ और सिर्फ मोनोऑक्साइड बनाएंगे ये। क्यों? Why they will make only monoxide? Because उनका साइज कैसे होता है? रीजन क्या दोगे आप? सॉरी, रीजन इनका होगा कि स्मॉल साइज, स्मॉल साइज एंड what is the high charge density? High charge density। whereas सुपर ऑक्साइड की अगर आप बात करोगे तो ये जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं, ये जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं कौन कौन होते हैं? पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम। ये जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं ये क्यों बनते हैं? बिकॉज उनका जो साइज होता है, साइज जो होता है वो लार्ज होता है और लो होता है उनका चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखनी है आपको कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है वो मोनोऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगे। मोनोऑक्साइड लिथियम बनाएगा, परऑक्साइड सोडियम बनाएगा, whereas पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम विल मेक सुपर ऑक्साइड। व्हेन यू विल कम टू ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स विल मेक मोनोऑक्साइड बिकॉज उनका साइज जो होता है वो छोटा होता है और हाई उनके पास में चार्ज डेंसिटी होती है। ओके, नाउ लेट अस सी कि ये मोनोऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये जो होते हैं सारे मोनोऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? सो एज यू ऑल नो कि ये जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्टेबिलिटी के, है ना। तो पहले हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी, whenever I'm talking about stability, monoxides are more stable than peroxide and peroxides are more stable than superoxides। Okay, let us give some examples over here। मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिथियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। चार्ज बता दो कैसा होगा चार्ज यहाँ पर? +2 -2। परऑक्साइड ले लो एक, Na2O2। चार्ज कैसा होगा यहाँ पे? +-2। सुपर ऑक्साइड ले लो एक, चार्ज कैसा होगा यहाँ पे? कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया मोनोऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी। अभी आपको पता है कि रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मीन स्टेबिलिटी की बात हमने ऐसे की है तो रिएक्टिविटी इसकी उल्टी हो जाएगी, है ना। तो जब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी की, सो हाउ विल बी द रिएक्टिविटी? सुपर ऑक्साइड्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी किससे? परऑक्साइड से। एंड परऑक्साइड्स विल बी more reactive than monoxide। Okay, understood? Now these are some terms। Now as I have told you about superoxide, ठीक है, superoxide का एक reaction हमने लिया वहां पर। When it will react with carbon dioxide, it will form what? It will form when superoxide, potassium superoxide is reacted with potassium superoxide को अगर मैंने react किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो मुझे वहां पर क्या मिलता है? I will get potassium carbonate plus water, oxygen, and that oxygen will be used by those persons in aircraft or which are in the submarines, and they will consume it. They will take it as inhale it, that oxygen,
ठीक है। तो वहां पर उसका यूज होता है सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का मेनली। एक और चीज देखते हैं, जब हम सुपर ऑक्साइड्स की अभी बात कर रही है तो सुपर ऑक्साइड को हम रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ठीक है, और फिर देखते हैं कि हमको क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो सुपर ऑक्साइड की अगर बात करें, सिर्फ सुपर ऑक्साइड नहीं, सारे ही ऑक्साइड्स को ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कैसे करेंगे? फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड ले लेंगे हम इसको, ठीक है, थर्ड हम मोनोऑक्साइड ले लेंगे। क्या करना है यहाँ पर? वाटर को ऐड करना है आपको। यू विल ऐड वाटर ओवर, ये H है यहाँ, ठीक है, अभी क्लियर है? H2. So I have added water over here. Now what will happen? Sodium monoxide when reacted with water, it will form sodium hydroxide twice. ठीक है। और जब यहाँ पर पोटेशियम सुपर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर आई विल गेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पर मुझे मिलेगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा यहाँ पे। ओके, when I will be reacting this peroxide with water, what will happen here? I will get again hydroxide, sodium hydroxide plus again hydrogen peroxide यहाँ पर मुझे मिलेगा। Now what will happen? This sodium hydroxide, it is basic in nature, basic होता है नेचर में, ये तो पता है आपको। बेसिक होता है नेचर में मीन्स इसका पीएच कैसा होता है? इसका जो पीएच होता है वो ग्रेटर होता है 7 से। जब ये बेसिक है, इसका पीएच 7 से ग्रेटर है, तो ये लिटमस पेपर जब मैं यहाँ पर यूज करूंगी तो वो क्या हो जाएगा? रेड लिटमस को किस तरह से ट्रीट करेगा? ये रेड लिटमस विल टर्न टू ब्लू, ब्लू हो जाएगा रेड लिटमस बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर। नाउ व्हेन आई विल बी यूजिंग लिटमस पेपर ओवर हियर, ये क्या करेगा? रेड लिटमस पेपर को डीकलराइज कर देगा। Why it will decolorize? Because of presence of this hydrogen peroxide. रीजन दे देती हूं मैं यहाँ पर आपको, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन peroxide, ठीक है। हाइड्रोजन ऑफ peroxide की प्रेजेंस की वजह से ये रेड लिटमस को डीकलराइज कर देगा। Okay, so this is how we are going to get the products when we will be reacting this superoxide, peroxide and monoxide with water. मीन्स बोलना ये है आपको कि whenever you are getting these hydroxides, कब मिल रहे हैं आपको ये हाइड्रोक्साइड्स? whenever you are treating this monoxide, peroxide and superoxide with water, ठीक है। वाटर के साथ जब भी आप ट्रीट कर रहे हो किसको? मोनोऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपरऑक्साइड को, whenever you are treating them with water, you are getting हाइड्रोक्साइड। सॉरी, आई फॉरगॉट टू राइट 2 ओवर हियर, ट्वाइस NaOH मिलेगा। तो ये जो हाइड्रोक्साइड्स मिलते हैं हमको, ठीक है, व्हेनेवर रिएक्टिंग मोनोऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपरऑक्साइड विद वाटर। नेक्स्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट का रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है। किसके साथ? ठंडे पानी के साथ। रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस आपको मिलने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हो आप लोग वो एक्सेप्शन से ही आते हैं, ठीक है। सो विल स्टडी दिस by differentiating them so that it will be easy for us to remember. So I'll be taking here alkali metals जो होते हैं ग्रुप 1 और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं ग्रुप 2, ठीक है। तो पहले जो अल्कली मेटल्स में पहला एलिमेंट होता है वो होता है लिथियम और यहाँ पर कौन होता है पहला एलिमेंट? बेरिलियम। लिथियम को जब मैं रिएक्ट करती हूँ वाटर के साथ, कैसा वाटर लेना है मैंने? कोल्ड वाटर। तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर? इट विल नॉट गिव एनी रिएक्शन, कोई भी प्रोडक्ट ये फॉर्म नहीं करता है। बेरिलियम ऑल्सो व्हेन रिएक्टेड विथ कोल्ड वाटर, ये भी रिएक्शन नहीं देता है हमको। ओके, नाउ व्हेन वी आर रिएक्टिंग लिथियम विथ वार्म वाटर, ठीक है, अभी मैंने वाटर को वार्म कर दिया है थोड़ा और मैंने वार्म वाटर को लिया, तो इट विल गिव मी लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व ओवर हियर।
Whereas when I will reacting beryllium with water, warm water, again it will not give me any product. ठीक है? So what is happening over here, when I am treating lithium with cold water, I am not getting any product, whereas beryllium with cold water, there also I am not getting any product. But when I am reacting lithium with warm water, I am getting lithium hydroxide plus hydrogen gases evolved over there. Whereas when I am treating beryllium with warm water, again it is not giving me any of the product. ठीक है? तो अब बात करते हैं लिथियम के बाद कौन आता है, सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम एंड देन सीसियम। इन दोनों की साथ में बात करेंगे, इन दोनों की साथ में बात करेंगे। ओके, तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, मैं इनको ट्रीट कर रही हूँ, किसके साथ ट्रीट कर रही हूँ, वाटर के साथ ट्रीट कर रही हूँ। हाउ इज द वाटर, द वाटर इज कोल्ड। ठीक है, अब जब मैं इनको कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट करूंगी सोडियम और पोटेशियम को, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे हाइड्रोक्साइड मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और पोटेशियम के साथ जब मैं वाटर को ट्रीट करूंगी तो मुझे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, दोनों रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, प्लस यहाँ पर फायर होगा दोनों रिएक्शंस। ठीक है, तो जब भी आप सोडियम और पोटेशियम को पानी में डालोगे, कोल्ड वाटर में डालोगे, तो दोनों जल जाएंगे, दे विल बर्न। ठीक है, सो सोडियम एंड पोटेशियम बर्न व्हेन यू पुट देम इन कोल्ड वाटर। वेयरएज रुबीडियम एंड सीसियम, रुबीडियम और सीसियम की बात करोगी तो अगेन दे हियर हाइड्रोक्साइड्स विल बी फॉर्म, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीसियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, प्लस they will burn, फायर होगी, मीन्स they will burn, प्लस और क्या होगा यहाँ पर, अब इतना सब कुछ तो हो गया है, तो यहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाएगा। ओके, एक्सप्लोजन विल टेक प्लेस ओवर हियर इन बोथ द रिएक्शंस। आफ्टर सम फायर, कुछ जैसे ही वो दोनों जलेंगे, रुबीडियम और सीसियम जैसे ही जलेंगे, वहां पर एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग, what you are going to remember, whenever rubidium and cesium, whenever they are put into cold water, they will form hydroxides, whereas hydrogen gas will be liberated over there, plus वो जलना स्टार्ट करेंगे, and then a high explosion will take place over there. Now when we are talking about beryllium, तो ये तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की बात हो गई। अभी ग्रुप 2 में बेरिलियम को आपने देखा वार्म वाटर के साथ और कोल्ड वाटर के साथ, दोनों के साथ ये कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है। आफ्टर बेरिलियम वी हैव मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑल्सो डजंट गिव एनी रिएक्शन इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में ये कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगर हम वार्म वाटर में ले मैग्नीशियम को प्लस वार्म वाटर, ठीक है, H2O लिया मैंने, वार्म वाटर के साथ अगर मैंने मैग्नीशियम को ट्रीट किया तो व्हाट विल हैपन, इट विल गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मुझे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा व्हेन आई एम ट्रीटिंग मैग्नीशियम विद वार्म वाटर। वेयरएज व्हेन आई एम ट्रीटिंग, कौन बचा है, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इसके बाद कौन आता है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ठीक है, whenever I am treating calcium, strontium and barium with cold water, है ना, कोल्ड वाटर के साथ मैं ट्रीट कर रही हूं, तो मुझे क्या मिलेंगे, what I will get, I will get हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड मिल जाएंगे मुझे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। हियर हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। ओके, अंडरस्टूड। सो क्या हो रहा है यहाँ पर स्टार बना सकते हो आप लोग। कहाँ स्टार बनाओगे, यहाँ एक स्टार बनाओगे लिथियम के पास, क्योंकि लिथियम रिएक्ट नहीं करता है कोल्ड वाटर के साथ। वेराज एक स्टार यहाँ बनाओगे आप बेरिलियम के पास, क्योंकि बेरिलियम भी रिएक्ट नहीं करता है कोल्ड वाटर के साथ। और तीसरा स्टार यहाँ बनाओगे मैग्नीशियम के पास, क्योंकि मैग्नीशियम भी रिएक्ट नहीं करता है कोल्ड वाटर के साथ। ओके, सो व्हेन यू आर रिएक्टिंग एस ब्लॉक एलिमेंट्स विथ कोल्ड वाटर्स, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर नॉट रिएक्टिंग विथ कोल्ड वाटर, whereas
all the rest elements are reacting with warm water, or sorry, when they are not reacting with cold water, they are reacting with warm water. This is the reason why they are giving us hydroxides. Whereas beryllium is not reacting with cold water also, neither with warm water also. Whereas rest other elements, sodium, potassium, rubidium and cesium, calcium, strontium and barium are reacting with cold water to give us hydroxides, whereas hydrogen gas is evolved over there. ठीक है, तो अभी यहाँ पर तो आपने देखा बेरिलियम वार्म वाटर के साथ और कोल्ड वाटर के साथ दोनों के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है हमको, तो कैसे हम इसको रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोक्साइड अगर हमको चाहिए, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू ओवर हियर, दो रिएक्शन लगाते हैं बेरिलियम के, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, दोनों भी रिएक्शन बेरिलियम क्लोराइड के साथ ही करेंगे हम लोग, पहला रिएक्शन दूसरा रिएक्शन, ठीक है। बेरिलियम क्लोराइड है अभी, तो यहां पर मैं इसको वाटर के साथ ट्रीट कर दूंगी, यहां पर मैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर दूंगी, ठीक है। तो व्हेनेवर आई एम ट्रीटिंग बेरिलियम क्लोराइड विद वाटर, व्हाट आई विल गेट, क्या मिलेगा मुझे, यहां पर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, है ना, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा मुझे, प्लस HCl आई विल गेट ओवर हियर, दो है ना, ठीक है। What will happen when I will treat beryllium chloride with water? I will get beryllium hydroxide plus HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब जब बेरिलियम क्लोराइड को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, What you will get here? You will get here ठीक है, प्लस यहां पर एक प्रोडक्ट मिलेगा आपको जिसको बोला जाता है सोडियम बेरेलाइट, ठीक है, सोडियम बेरेलाइट मिलेगा आपको। और वो प्रोडक्ट कैसा होता है, वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, Na2 4, ठीक है, इसको सोडियम बेरेलाइट बोलते हैं। प्लीज कीप दिस इन माइंड, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सोडियम बेरेलाइट मिलेगा आपको यहाँ पर, when you are reacting beryllium chloride with water you are getting beryllium hydroxide plus HCl, when you are reacting beryllium chloride with sodium hydroxide तो आपको सोडियम बेरेलाइट मिलता है, ओके। ना जैसे मैंने अभी एक फॉर्मूला दिया था आपको सोडियम बेरेलाइट का, ठीक है, तो दीज कंपाउंड्स, ये जो टर्म्स होते हैं, सोडियम बेरेलाइट हो ले लो या बराइटा ले लो या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो, तो स्लेक लाइम, ये सारे आपको क्विक लाइम, ये सब आपको पता होने चाहिए, सो दैट व्हेनेवर एमसीक्यूज में क्या होता है डायरेक्टली ये लोग इसी टर्म को यूज करते हैं, सो यू शुड नो कि व्हाट कंपाउंड दे आर आस्किंग अस, ठीक है। तो हम लोग पहले हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं। When we are talking about hydroxides in group 1 and group 2 elements, if I have to make hydroxides of lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, यहाँ पर कौन कौन आएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। हाइड्रोक्साइड बना दो इनके, OH, 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 यहाँ पर हाइड्रोक्साइड्स बना दो। अभी आप बोलोगे यहाँ पे होल्ट वाइज क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पर क्या होता है, दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए मैंने इसको होल्ट वाइज कर दिया OH को, ठीक है। ये हो गए हाइड्रोक्साइड्स। Now when we are talking about the ionic character, the basic character and the solubility of these elements, तो आपको ये पता है कि ग्रुप में जब भी आप डाउन द ग्रुप जाओगे, यहाँ पर भी जब भी आप डाउन द ग्रुप जाओगे, तो what is happening as the atomic size is increasing, ionization enthalpy is decreasing। आपको पता होगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसके किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आयोनिक कैरेक्टर के, सॉल्युबिलिटी के और बेसिक कैरेक्टर के, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, सॉरी
ठीक है, कम होगी जैसे जैसे आप नीचे जाओगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो आयोनिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करनी हो आपको तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉल्युबिलिटी के भी ये सारे जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सॉल्युबिलिटी भी यहाँ पे इंक्रीज होगी। वेराज आयोनाइजेशन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिक कैरेक्टर, तो बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो, ठीक है। व्हेन यू विल गो डाउन द ग्रुप एज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीजिंग इन बोथ द ग्रुप्स, group 1 also and group 2 also, as the atomic size is increasing when you are going down the group, ionization enthalpy is decreasing. As the ionization enthalpy is decreasing, ionic character is increasing, solubility is increasing, whereas basic character is also increasing over there. Moreover, ये जो कुछ terms होते हैं ना जो मैंने आपको बोले कि आपको याद रहने चाहिए कि वो किस कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो मैं आपको कुछ बता देती हूँ यहाँ पर। जैसे आप अगर बात करोगे कैल्शियम ऑक्साइड की, ठीक है, तो इसको क्विकलाइन बोलते हैं। Whereas if you are talking about calcium hydroxide, अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हो तो इसको स्लेक्ट लाइन बोला जाता है। ओके, नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, तो इसको मैग्नेशिया बोलते हैं मोस्टली। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर बोलोगे आप तो इसको मिल्क ऑफ मैग्नेशिया बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया ये जो है ना, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, इट इज यूज्ड एज एंटा एसिड। एंटा एसिड में इसका यूज होता है, एंटा एसिड के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। मीन्स जब भी आपको एसिडिटी हो जाती है ना, डकार लेते हो, मीन्स जब भी एसिडिटी होती है तो वो जो सिरप आप कंज्यूम करते हो वो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया ही होती है, ठीक है। तो इट इज यूज्ड एज एंटा एसिड। मोरोवर और क्या होता है, और कुछ होता है, क्या होता है, बराइटा, बराइटा भी होता है। बेरियम को बोला जाता है, बेरियम जो होता है ना, बेरियम ऑक्साइड, इसको बराइटा बोलते हैं। और बेरियम हाइड्रोक्साइड को बराइटा सॉल्यूशन कहा जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स के बारे में जो है, और ऑक्साइड्स के बारे में हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो टिल देन कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। Thank you so much.